Good afternoon, everyone. Sorry. Good afternoon, everyone. In the last class, we were doing indifference curve and we were doing the marginal rate of substitution. I think एक किसी student की query भी थी marginal rate of substitution की. So I told her to I'll continue in the next class. And so that's why I'm starting with that only today. That marginal rate of substitution. ठीक है? So marginal rate of substitution is the actually अगर हम बात करें in simple terms एक तरह से एक exchange rate है. Exchange rate of one commodity in terms of the another. कि एक commodity को कितना हमको sacrifice करना पड़ा है to get the another unit of other commodity. ठीक है? Because इसका रीजन क्या है? Why we want to substitute? Because we have a limited income. अब जब मेरी लिमिटेड इनकम है तो मैं उसमें से अगर मैं एक यूनिट बढ़ाना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल आपको पॉकेट मनी मिलती है, अगर आपको पॉकेट मनी में एक लेट्स सपोज आपको कुछ खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, कुछ भी खाना है, तो आपको एक कमोडिटी कोई ना कोई सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी उसके एक्सचेंज में. That is what exactly is the marginal rate of substitution. So let's start with an example. Now here I am having a units of commodity. कोई भी एक commodity ले लीजिए, units हैं. Now here I am like the what we can say is that commodity units of commodity Y. Yeah, commodity you can say good Y, and here I am sorry. So here I am having commodity X. Now here I am having the marginal rate of substitution between these two commodities. Okay. So marginal rate of substitution between the commodity X and commodity Y. Let's suppose the first combination, let it be instead of the units, क्योंकि units हम Y और X के लेंगे, so let it be the combination. That will give us a more better spell. ठीक है? So the first combination. Let's suppose within my income, I can buy 25 units of commodity जो है Y के. ठीक है? So here I am having 25 units of commodity Y, but here I am not. Let's suppose I am having 1 unit of commodity X. तो because यहाँ पे पहले कोई कंजम्पशन नहीं है, so marginal rate of substitution आप यहाँ पे 0 तो बेटर है नहीं लिखो, but you can send a slash, क्योंकि 0 का मतलब है कि you are not consuming anything. ठीक है? So 0 means we are not consuming anything, but actually the rate is not there. मतलब पहले के कंपैरिजन में इस टाइप पे रेट नहीं है, so means हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते. So that's why I'm what I'm doing is that I'm sending a blank, just writing a blank. Now for the second combination, I'm consuming 20 units of commodity Y and 2 units of commodity X. तो मेरा गेन कितना हुआ? अब मैं जो ब्लू में लिख रही हूं, तो बच्चे आपको ये लिखना नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो ब्लू मार्कर से आई एम राइटिंग. ठीक है? सो मेरा गेन कितना हुआ? 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी X. मुझे सैक्रिफाइस कितने करने पड़े यूनिट्स? 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी Y. ठीक है? सो 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बाय sacrifice करने पड़े to get 1 unit of commodity X. तो marginal rate of substitution क्या हुआ? 1X equals to 5Y. और इसको हम 1:5 भी लिख सकते हैं, कैसे मर्जी, दोनों ही करेक्ट है. 1X equals to 5Y, 1:5 भी.
So this is the marginal rate of substitution between x and y commodity. ठीक है? So for the combination 3, now I am consuming 16 units of commodity y to get additional 1 unit of commodity x. Now again जो मैं view में लिख रही हूँ वो आपको नहीं लिखना है, that is just for your understanding. Again मैंने कितने यूनिट्स इंक्रीज किए? 1 ऑफ x. अब मैंने यहाँ पे कितने सैक्रिफाइस किए? 4 यूनिट सैक्रिफाइस मुझे करने पड़े. तो इस केस में मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना है? 1x इज इक्वल्स टू 4y. और अगेन मैं इसको इस फॉर्म में भी आई कैन राइट लाइक दिस एज वेल. ठीक है? Then for the fourth, let's suppose I am consuming 13 units of x and 1 extra unit of y. ठीक है? So यहाँ पे मेरा sacrifice rate क्या आ गया? 1x is equals to 3y, right? So that means मैंने कितना gain किया? 1. So कितना लॉस किया? I have to sacrifice कितने यूनिट्स? 3 यूनिट्स. ठीक है? So this now you can see this marginal rate of substitution is declining. पहले मैंने 5 sacrifice किए, फिर मैंने 4 किए, फिर मैंने 3 किए. अगर मैं आगे करती हूँ तो 2:1 भी ले सकते हैं. ठीक है? 5th unit. So let's suppose it's 11. This is 5. So the marginal rate of substitution is 1:2, and I can take more as well. Okay, so this marginal rate of substitution is declining. इसका reason क्या है? As we are like satisfying our wants. जैसे जैसे मेरी wants satisfy होती रहती है एक commodity की, जितना मैं उसको ज्यादा consume कर लेती हूँ, उतनी ही मेरी उसकी जो है वो उसके जो है सेक्रीफाइस रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है. ठीक है? जितना मैं पहले से ज्यादा सेटिस्फाई हो जाऊंगी उतना जो है सेक्रीफाइस रेट जो है कम से कम होना शुरू हो जाएगा. सो इन दिस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज दैट देयर इज ए डिमिनिशिंग marginal rate of substitution. So we are having diminishing marginal rate of substitution. That means ये देखो ये जो declining है. So I hope it's clear now. If she's present, I don't remember her name as well. I'm sorry. Is that any question right now? Any query, any question regarding the marginal rate of substitution? Till now there is no questions. So let me move further. So now the indifference curve shape of IC as per the definition. As per the definition, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व की. फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व. मैं इंडिफरेंस कर्व को नाउ आई एम राइटिंग लाइक आईसी. सो जहां जहां पे भी आईसी है सो समझ लेना दैट इज इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड left to right. Higher the indifference, मैं एक एक करके सारी एक्सप्लेन भी कर रही हूँ आपको, बट मैं एक बार सारी आई एम जस्ट राइटिंग. हायर द इंडिफरेंस का IC gives higher level of
at level of satisfaction. ठीक है, lower the indifference curve, lower will be the level of satisfaction. ठीक है, curve is convex origin. See, never touches y-axis and ठीक है, इंडिफरेंस कर्व, 2 और मोर इंडिफरेंस कर्व जो हैं हमारे, जो भी जितने भी इंडिफरेंस कर्व हैं, नेवर intersect each okay. So all these are the properties of indifference curve. So what are the different properties? अब हम इसको explain करते हैं, ठीक है, one by one. First property, indifference curve slopes downward. That means indifference curve जो है उसकी जो slope है वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. Now this is the based on the assumption. अब इसकी कोई भी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने से पहले हमें उसकी जो है assumptions पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है. assumption पे पहली assumption क्या थी? the indifference curve जो है हम इंडिफरेंस कर्व को क्या करते हैं कि that gives the equal level of satisfaction to the consumer. Something went wrong. Rhythm, what's happening? You are not seeing the screen. I guess my screen is visible, I guess. I think so my screen is visible, but let me check as well. रिदम, अगर आपके एक सेकंड मैं चेक कर लेती हूँ, या प्लीज बाकी भी कोई बता सकता है तो प्लीज बता दीजिए. तो रिदम, व्हाट यू कैन डू इज दैट आप या तो रीज्वाइन करके देखो, माइट बी आपके कनेक्शन में कोई इशू हो. जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस बच्चे, माय स्क्रीन इज विजिबल वेरी मच. सो आप एक बार अपना कनेक्शन चेक करके देखिए, या तो रीज्वाइन करके देखिए प्लीज. माइट बी आपके एंड से कोई इशू है, because technical team is telling me that my screen is totally visible, right? Thank you. Okay, let's coming towards the thank you. Okay, so the two indifference curve. Now I'm coming towards the first assumptions, first property. अगर आपको इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन याद हो तो इंडिफरेंस कर्व क्या था? वी ऑलवेज बाय गुड्स इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, and each and every point on the indifference curve gives the same level of satisfaction to the consumer, ठीक है. Now let me explain you with the help of an diagram. Now let's suppose instead of drawing like downward sloping, मैं उसको upward sloping curve बना रही हूँ, just for your understanding, ठीक है. So this is your IC, right? So indifference curve यहाँ पे कौन सी शेप का है? अपवर्ड स्लोपिंग. So let's suppose I am having a combination A
and combination B. Now let me tell you A and this is the B combination. ठीक है, यहाँ पे मैं कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ, x1 xk and here I am consuming x2 units and here y1 sorry and here y2. Now कॉम्बिनेशन ए से जब हमने कॉम्बिनेशन बी की तरफ मूव किया तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स के यूनिट्स इंक्रीज किए, वाई के भी इंक्रीज किए. जब दोनों यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा, राइट. सो दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि जो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व, जैसे यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं ए एंड बी, सो दैट मीन्स ए से ज्यादा बी मुझे सेटिस्फेक्शन देगा क्योंकि मैंने दोनों यूनिट्स जो है वो इंक्रीज किए. ठीक है, सो दैट मीन्स दिस ए बी जो है मुझे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा ए से. तो हमारी assumption क्या थी, each and every point on indifference curve gives the same level of satisfaction to the consumer. ठीक है, now let me make another let's suppose indifference curve is either parallel to x-axis or it's parallel to y-axis. दोनों ही केस में एक ही टाइप की एक्सप्लेनेशन जाएगी. So it's either parallel to x-axis or parallel to y-axis. Now here again I am having two combinations, combination A and combination B. Similarly here I am having again a two combination, combination A and combination B. अब यहाँ पे एक की टर्म कांस्टेंट रही है, दूसरे की इंक्रीज की है. सो यहाँ पे भी एक की नंबर ऑफ कंजम्पशन कांस्टेंट रही है, दूसरा जो है दूसरी कमोडिटी इंक्रीज की है. सो दोनों ही केस में अगेन मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज हो जाएगी. द रीजन इज दैट कि मेरा एक का कांस्टेंट है, दूसरे के नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हुए. फॉर एग्जांपल आपने मींस दो कमोडिटीज इकट्ठे कंज्यूम कर रहे थे, एक के यूनिट कांस्टेंट रखे, मींस कांस्टेंट मींस कि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वहां से डिक्रीज नहीं किया, सेम रहा. और वेयर सेकंड की जो कंजम्पशन है ना वो इंक्रीज कर दी. सो दैट मींस आपका इंटायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या हुआ, वो इंक्रीज किया. ठीक है, सो इन दिस केस आल्सो दी नंबर जो हमारी कंजम्पशन है, हमारी जो सेटिस्फैक्शन है ना, बी सेटिस्फैक्शन मेरी ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, दोनों ही केस में. ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस का. ठीक है, so again I am having two combination A, sorry, combination B, combination A, so and combination B. So that means मैंने A के यूनिट सैक्रिफाइस किए to get additional unit of Y commodity के कुछ यूनिट्स sacrifice किए to get additional unit of X commodity. So that means एक के increase किया है, दूसरे के decrease किया है, तो our level of satisfaction कहीं ना कहीं same रहेगा. So the shape of the indifference curve can't be, ना तो वो shape upward sloping हो सकती है
ना कोई पैरेलल हो सकती है, तो और कौन सी शेप बचती है हमारे पास? डाउनवर्ड स्लोपिंग। दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी इंडिफरेंस कर्व की कुछ असम्पशन थी, जिसमें से एक असम्पशन थी दैट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन each point, each combination on indifference curve gives the same level of satisfaction to the consumer. ठीक है, मीन्स के हर कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन होगा जो इंडिफरेंस कर्व पे, वो कंज्यूमर को क्या करेगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो इफ नाउ, अब मैं अज्यूम कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग, या तो इंडिफरेंस कर्व मेरा अपवर्ड स्लोपिंग है, या मे बी इट कैन हैव अ शेप लाइक parallel to either x-axis or y-axis, and then I have a downward sloping shape. ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग शेप में क्या हो रहा है कि मेरे दोनों ही नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इंक्रीज हो रहे हैं। तो दैट मीन्स जब मैंने दोनों यूनिट्स की, दोनों कमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज करूंगी, तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा इंस्टेड ऑफ सेम। सो दैट मीन्स ये वाली जो मेरी असम्पशन है वो वायलेट करगी इस केस में। So shape of indifference curve can't be the upward sloping. Second चीज है कि यह parallel to either x-axis और y-axis. अब दोनों ही केस में एक कमोडिटी कांस्टेंट है, दूसरे की इंक्रीज हो गई है। फॉर एग्जांपल x कमोडिटी के मैं 10 यूनिट्स इंक्रीज कंज्यूम कर रही हूँ एंड y यूनिट कमोडिटी के 12 कॉम्बिनेशन A में। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन जो B है उसमें मैंने X कमोडिटी के तो 10 ही कंजम्पशन किए, बट Y के जो है 12 से ले इंक्रीज हो गए 16 में। सो जब मेरी Y इंक्रीज होगी तो दैट मीन्स मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज हो गई, राइट? सो जब मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज होगी तो ये वाली असम्पशन मेरी जो है वो वायलेट कर गई। ठीक है, सो दैट मीन्स दोनों की शेप जो है ना तो अपवर्ड स्लोपिंग हो सकती है आईसी कर्व की, ना ही वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। एंड लास्ट केस क्या बचता है हमारे पास? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब जब डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग के केस में जैसे x की 10 थी, 12 मैंने अब y की थी। अब मैंने क्या किया? अब मैंने y के कुछ यूनिट सेक्रीफाइस किए, मींस 12 से आ गया 8 पे, टू गेट एडिशनल यूनिट्स ऑफ x कमोडिटी। सो यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो सेम हो सकती है, क्योंकि मैंने एक के यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया टू गेट एडिशनल यूनिट्स ऑफ अदर commodity. ठीक है, so this is how we can say that के indifference curve will always be having a downward slope instead of the upward sloping, or you can say। और दूसरी assumption यहाँ पे आप ले सकते हो कि marginal rate of substitution is negative। हमने कहा था diminishing marginal rate of substitution है, right? So diminishing marginal rate of substitution तो वो कन्वेक्सिटी में अप्लाई होती है वैसे, बट यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि एक के सैक्रिफाइस कर रहे हैं और दूसरे के इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। वैसे मैंने दोबारा बताई है, अगर आपको नहीं क्लियर तो दोबारा से एक बार प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। रिदम सॉरी बच्चे, फिर मैं आई कांट help you because the problem is at your end only. Yes, diagram is very necessary in the exam। आपको 80% मार्क्स डायग्राम बेसिस पे ही मिलते हैं। सॉरी बच्चे, आई माइट बी आपका इंटरनेट स्लो होगा शायद, उसकी वजह से। आप एक बार टीम्स को पूरा एग्जिट करके दोबारा से रीज्वाइन करके देखो, बिकॉज रिकॉर्डिंग में अदरवाइज यू कैन गेट इन रिकॉर्डिंग, उसमें आपको प्रॉपर स्क्रीन शेयर होगी।
हो रही है, आई हैव चेक्ड ऑल्सो एंड अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग. प्लीज एक बार ना अपना पूरा टीम्स को एग्जिट करके दोबारा से रीज्वाइन करके देखो. ठीक है, आई होप आपको सुर भी क्लियर हो गया होगा. तो सेकेंड, एक मिनट में क्वेश्चन देख रहा हूं. Second property is that indifference curve is always convex to origin. So again I am drawing the same diagram. यहाँ पे आपको अप्लाई होगा कौन सी assumption that we are having a diminishing marginal rate of substitution. ठीक है, so this is my shape of convexity. मैं फिर से एक डिफरेंट शेप से एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज कनकेव एंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द कनकेव शेप. ठीक है, दिस इज द कनकेव शेप एंड देन आई कैन हैव अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन indifference curve. ठीक है, so this might be another shape, this might be another shape. ठीक है, now let's me explain first this one. सबकी x एक्सिस में कमोडिटी y एंड कमोडिटी x है, तो प्लीज अगर मैं ना लिखूं या कहीं मैं स्किप मेरे माइंड से निकल जाए तो यू शुड राइट कमोडिटी y एंड कमोडिटी x. ओके, so this is the combination A. Let me draw it clearly. And this is the combination B. And then this is the combination C. Now, if you can see, each and every time my sacrifice rate is increasing instead of declining. आप यहाँ पे देखो मैं कितने ज्यादा यूनिट्स डिक्लाइन कर रही हूँ टू गेट few additional unit of x. Again मेरा sacrifice और rate ज्यादा है as compared to the getting the additional unit. मैं इसको और आगे जाऊं तो see, so मुझे कितने ज्यादा यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं टू गेट एडिशनल यूनिट्स ऑफ एक्स. सो यहाँ पे मेरा एक्चुअली इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है. हर बार मुझे ज्यादा से ज्यादा यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं टू गेट एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स. So in this case there is increasing marginal rate of substitution. तो हमारी जो assumption है वो क्या है, diminishing marginal rate of substitution की that violates. So we can say that this is not the shape of the indifference curve. Now coming towards this downward sloping straight line. So if you can see here, each and every time sacrifice rate is same. मैं same number मैं example से बता दूं. So यहाँ पे अगर मैंने 1:5, 1:5, 1:5 की रेशियो है. So यहाँ पे 1:5, second time 1:6. then third time 1:7, then fourth time 1:8. पर हमारी assumption क्या है, diminishing marginal rate of substitution की. यहाँ पे marginal rate of substitution क्या है, constant.
और यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग. सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस साइड. So here the sacrifice rate convex to origin. So here I am having 1:2. Let's suppose पहले 6 की थी, then 1:5. So diminishing marginal rate of substitution जो अभी आते ही, जैसे जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी, जो चीज एक्सप्लेन करी थी, this is the same thing you can say. I hope it's clear. Any question till now? Any question till now? Okay. So right now there is no question. So let me coming towards the third assumption. Third assumption कौन सी थी? तो हाँ, इसकी सॉरी, इसी में ही एक वेरिएशन है थोड़ा सा, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हमारा स्पेशल शेप ऑफ आईसी है इन केस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट गुड्स. कॉम्प्लीमेंट गुड्स कौन सी होती हैं? जो दो गुड्स को एक साथ कंज्यूम किया जाता. सो इन दैट केस हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो एल शेप का होता है. एल शेप क्यों होता है? आई जस्ट टेल यू. देखो, ये है मेरा कॉम्बिनेशन ए एंड ये है मेरा कॉम्बिनेशन बी. ठीक है. सो नाउ व्हाई इट्स एल शेप मीन्स, अब लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पेयर ऑफ सॉक्स की या पेयर ऑफ शूज ले लो. एक पैर आप जब आप यूज क्या आएगा, जब आपके पास दोनों लेफ्ट शूज एंड राइट शूज दोनों अवेलेबल है. अगर आपने लेफ्ट शूज इंक्रीज कर दिया, राइट शूज इंक्रीज नहीं किया, सो उस केस में क्या होगा कि वो हमारे लिए कमोडिटी जो है वो यूजलेस हो जाएगी. सिमिलरली दैट मीन्स कि हम जब यूज कर पाएंगे कमोडिटी को, वो कौन सी कैसे कंज्यूम कर पाएंगे? एक कॉम्बिनेशन में. ठीक है. सो वो कॉम्बिनेशन क्या है? पॉइंट ए. अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट शूज है, अगर मैं लेफ्ट शूज इंक्रीज करी जाऊंगी तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है. या राइट शूज इंक्रीज करी जाऊंगी तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है. बेनिफिट कब होगा? जब लेफ्ट शूज प्लस राइट शूज सेम कॉम्बिनेशन में इंक्रीज होगा. सो दैट मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. सो दिस इज द केस व्हेन वी आर हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री goods. In case of the perfect substitute, indifference curve is parallel to downward sloping straight line. ठीक है. This is the indifference curve when we are having a downward sloping substitute goods. Now substitute goods ऐसे हैं जैसे थम्स अप एंड कोका कोला. आपको कोई भी अवेलेबल हो, आप कंज्यूम कर लेते हो. यू आर नॉट आस्किंग लाइक नहीं जी थम्स अप ही चाहिए. बट एक चीज पॉइंट है कि जब आपने वो चीज कंज्यूम कर ली तो दूसरी आप नहीं करोगे, राइट? सो दूसरी की आपकी कंजम्पशन जो है वो जीरो. सो दैट्स व्हाई इन दिस केस इंडिफरेंस कर्व जो है वो वाई एक्सिस को भी टच कर सकता है और एक्स एक्सिस को भी टच कर सकता है. ठीक है. सो इस केस में हमारा सेक्रीफाइस रेट जो है हर बार सेम रहता है इन केस ऑफ द सब्स्टिट्यूट. ठीक है. आई होप स्पेशल केस क्लियर है. सो नेक्स्ट इज, मुझे नहीं पता, वहां में याद नहीं है कौन सा लिखा था, बट मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ. सो आई सी नेवर टचेस y-axis and x-axis, right? Let's suppose इंडिफरेंस कर्व जो है वो टच कर रहा है x-axis को या फिर y-axis को. So this is my indifference curve. ठीक है. So C अगर टच कर रहा है तो वो उसने क्या किया? कमोडिटी x की कंजम्पशन को क्या कर दिया? जीरो कर दिया. एंड कमोडिटी y की कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज करता गया.
नाउ एट कॉम्बिनेशन में क्या है पॉसिबिलिटी, एक्स जो है एक्स की कंजम्पशन जो है वो 0 है। सो जब x की कंजम्पशन 0 है तो y इज कंज्यूमिंग, तो दैट मीन्स, बट हमने, अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो हमने कहा था कि आइदर वी आर गोइंग टू कंज्यूम कमोडिटीज इन ऑलवेज इन ए कॉम्बिनेशन, हम उसको कॉम्बिनेशन में कंज्यूम करते हैं, एक टाइम पे ये नहीं करेंगे कि एक कमोडिटी को सीधा सीधा 0 कर देंगे, ठीक है। So we always have a commodity in combination, means अगर मैं लंच कर रही हूँ तो मुझे दाल और चपाती दोनों चाहिए, ठीक है। यही नहीं है मैं चपाती, कॉम्प्रिहेंसिव गुड्स नहीं है बेटा जी, वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, जो दो कमोडिटीज एक साथ आप कंज्यूम करते हो। फॉर एग्जांपल पेन एंड इंक, अगर आप इंक ही लेते जाओगे, पेन नहीं होगा आपके पास तो आप राइट नहीं कर पाओगे। अगर आप पेन लेते जाओगे उसकी इंक नहीं होगी तो आप उस तब भी नहीं यूज कर पाओगे। सो दैट मीन्स इफ यू आर इंक्रीजिंग वन कमोडिटी तो आप उसकी जो कंजम्पशन है उसको इंक्रीज नहीं कर पाओगे, अपनी सेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं कर पाओगे। सेटिस्फैक्शन कब इंक्रीज होगी, जब दोनों कमोडिटीज को आप एक कॉम्बिनेशन में बाय करोगे, ठीक है। सिर्फ एक कमोडिटीज के साथ कॉम्बिनेशन जो है आपकी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज नहीं होगी। सो उस केस में हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो किस शेप का होगा, ये एल शेप। मीन सिर्फ इस लेवल पे, इस पॉइंट पे मेरी कंजम्पशन है और किसी पॉइंट पे मेरी कंजम्पशन नहीं है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मेरी कंजम्पशन है और किसी पॉइंट पे मेरी इस इंडिफरेंस कर्व पे और किसी पॉइंट पे मेरी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। सिमिलरली वाई एक्सिस को भी अगर इंडिफरेंस कर्व टच करता है तब भी हम क्या कर रहे हैं, एक कमोडिटी को 0 कर रहे हैं एंड दूसरी कमोडिटी के कॉम्बिनेशंस को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल, ये हमारी अजम्पशन को वायलेट करेगा दैट वी आर कंज्यूमिंग गुड्स इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशन, two indifference curve never cuts each other, दो इंडिफरेंस कर्व नेवर कट्स ईच अदर। नाउ मैं अज्यूम कर लेती हूँ दो इंडिफरेंस कर्व कट कर रहे हैं। आई हैव थ्री कॉम्बिनेशन ए बी एंड सी। एज पर द डेफिनेशन, higher the indifference curve, higher level of satisfaction, lower the indifference curve, lower level of satisfaction. सो ये वाली अब assumptions हम अप्लाई करेंगे। कॉम्बिनेशन ए पे क्या है, कॉम्बिनेशन ए इज ऑन दी हायर इंडिफरेंस कर्व व्हिच गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन बी। देखो कॉम्बिनेशन बी से ज्यादा कॉम्बिनेशन ए हमें जो है सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अब एज पर दी डेफिनेशन दो पॉइंट सेम आईसी पे होंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, दैट मींस ए इज इक्वल्स टू सी and also B equals to C। एंड दूसरी चीज हम ऑल्सो कह चुके हैं कि वो ट्रांजिटिव है, एक बार जो चॉइस को रिजेक्ट कर दिया तो कॉम्बिनेशन हमेशा रिजेक्टेड है। बट यहाँ पे मुझे ए जो है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है बी से, और अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं ए इज इक्वल्स टू सी, बी इक्वल्स टू सी, सो एज पर द डेफिनेशन A is equals to C होना चाहिए, सॉरी A is equals to B होना चाहिए। पर हमने पहले कहा कि A से ज्यादा B सेटिस्फैक्शन, सॉरी B से ज्यादा A सेटिस्फैक्शन दे रहा है, सो दैट मीन्स अगेन वी आर वायलेटिंग द कंडीशन assumption that choices are you can say transitive and consistent। ट्रांजिटिव क्या होता है, जब एक को प्रेफर किया दूसरे से, दूसरे को प्रेफर किया तीसरे से, तो पहला हमेशा तीसरे से प्रेफर रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कॉफी को प्रेफर किया टी से, टी को प्रेफर किया कोल्ड ड्रिंक से, ठीक है।
सो तो मैंने कॉफी को ऑटोमेटिकली कोल्ड ड्रिंक से प्रेफर कर लिया, बट यहाँ पे क्या फिर दूसरी चीज मैं कह रही हूँ कि मुझे कोल्ड ड्रिंक और कॉफी सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो ये दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये अजम्पशन वायलेट होती है, तो दैट मींस टू इंडिफरेंस कर्व विल नेवर कट each other. So higher the indifference curve, higher will be the level of satisfaction. Lower the indifference curve, lower will be the level of satisfaction. पर ये जरूरी नहीं है indifference curve parallel हो, क्योंकि हमारे preferences सेम रह सकती हैं, बट कंजम्पशन के पॉइंट्स जो हैं वो डिफर कर सकते हैं. सो एट ऑलवेज टू इंडिफरेंस कर्व कैन बी पैरेलल एंड कैन नॉट बी पैरेलल, बट हमेशा मुझे जितना ज्यादा कंज्यूम करूंगी उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन, जितना कम कंज्यूम करूंगी उतनी कम सेटिस्फेक्शन. कट एक्चुअल में नहीं करेंगे इंडिफरेंस कर्व. इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. ओके, सो मैं कह रही हूँ मुझे कॉफी ज्यादा प्रेफरेंस देती है एज कंपेयर टू टी, ठीक है. और दूसरी वे में कह रही हूँ टी मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है एज कंपेयर टू कोल्ड ड्रिंक, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिटिव चॉइस, ट्रांजिटिव जो असम्पशन है, इसका मतलब क्या है, कॉफी मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी एज कंपेयर टू कोल्ड ड्रिंक, ठीक है. एंड दूसरी वे में मैं कह रही हूं कॉफी इज इक्वल्स टू टी. तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कॉफी मुझे ज्यादा दे रही है टी से, और यहाँ कह रही हूँ मैं कॉफी इज टी. दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, ठीक है. सो ये चीज है कि जब मैं एक चीज को रिजेक्ट कर चुकी हूँ, मैं दोबारा वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती. दो इक्वल नहीं ले, मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना. एक बार आपने उसको कह दिया कि नहीं यार ये रिजेक्टेड है, दूसरी बार कह दिया नहीं उठा ला, ये पॉसिबिलिटी नहीं है हमारी इंडिफरेंस का. में एक बार जो कॉम्बिनेशन रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया. तो आई होप इट्स क्लियर नाउ. आई होप इट्स क्लियर. अच्छा, नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू एवरीबडी, आप अपने जो है कॉपी और पेन साथ लेके बैठो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है. ये तो सिंपल डायग्राम्स हैं, आपको सबको आ जाएगी, बट जो दूसरी डायग्राम्स हैं उसमें ये भी आ जाएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बट इसके आगे की जो डायग्राम्स हैं वो ड्रॉ करने में भी आपके लिए मुश्किल हो. सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप पेपर और पेन साथ में लेके बैठो, ठीक है. एंड हाँ बच्चे, मैं लास्ट क्लासेस में क्वेश्चन पेपर विल डेफिनेटली आई डिस्कस यू. सो नाउ सॉरी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. सबसे पहले कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए. फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इंडिफरेंस मैप, ठीक है. एक इंडिफरेंस मैप चाहिए. सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, बजट लाइन. सो फर्स्ट चीज तो आपको पता है इंडिफरेंस मैप और स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, जहां पे डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व हैं. जो एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व एक ही डायग्राम में होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप, ठीक है. तो हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ satisfaction, lower the indifference curve, lower the level of satisfaction. If you, I can draw this. So this is the example of indifference map. Do remember this thing that two indifference curve will never cut each other. indifference curve ना तो x axis को टच करेगा कभी, ना ही
वाई एक्सिस को टच करेगा। हाँ, नॉन पैरेलल हो सकते हैं, ये आपस में कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, ये इनका डिफरेंस जो है कम से कम हो सकता है, बट ये आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस इज इंडिफरेंस मैप। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी बजट लाइन, जिसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ क्वेरी है? बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, होती क्या है ये? अ कंज्यूमर अपनी इनकम में से, जितनी भी उसकी इनकम है, उसमें से जितने भी कॉम्बिनेशन, वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकता है, किसके? दो कमोडिटीज के। इवन कहोगे कि मैम यही चीज तो इंडिफरेंस कर्व में थी, बट इंडिफरेंस कर्व में एक चीज याद रखो, उसमें इनकम वर्ड हमने नहीं ऐड किया था, कि हमने सारी इनकम जो है वो इंक्लूड की थी। मींस मैंने उसकी इनकम में से कॉम्बिनेशन बनाए थे। मैंने कहीं पे भी, आपने ध्यान दिया हो, मैंने इनकम वर्ड कहीं नहीं यूज किया था, बस मैंने दो कॉम्बिनेशन के वेरियस कॉम्बिनेशन, दो कमोडिटीज के वेरियस कॉम्बिनेशन बनाए थे, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे सकता था। अब वो कॉम्बिनेशंस बनाएंगे जो कंज्यूमर की इनकम में आते हैं और उनकी प्राइसेस हमें पहले से पता है। ठीक है, नाउ इसकी लेट्स सपोज मेरी इनकम, मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको। लेट्स सपोज मेरी इनकम कितनी है? 100 रुपीज। ठीक है, अब मैं जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, क्योंकि यहाँ पे प्राइस भी पता होनी चाहिए, इज 10, एंड प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी क्या है? 20। ठीक है, सो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे एक्स एंड वाई के, किस किस वे से बनेंगे, जिसमें अपनी उस इनकम में से उसको बाय कर सकती हूँ। लेट्स सपोज एक्स है एंड वाई। एक्स, अगर मैं वाई पे कुछ भी कंज्यूम ना करूं, मैं कोई पैसा ना खर्चूं, तो मैं मैक्सिमम कितने यूनिट्स कंज्यूम कर सकती हूँ? वाई के 0 एंड एक्स के 10, क्योंकि 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100 रुपीज। मेरे पास 100 ही है, मैं 100 से ज्यादा कंजम्पशन नहीं कर सकती। ठीक है, अगर मैं यहां से कुछ कंज्यूम यूनिट जो है वो डिक्लाइन करूं, ठीक है, सो दैट मीन्स नाउ आई एम कंज्यूमिंग 8 यूनिट्स, तो अब मेरे पास कितने रुपीस बच के? मैंने 8 इंटू 10 कितने खर्च कर दिए? 80 रुपीज ऑन कमोडिटी एक्स, एंड कितने बच गए मेरे पास? 20 रुपीज। 20 रुपीज में मेरे पास वाई के कितने यूनिट्स आएंगे? 1 के। अब आप कहोगे कि मैम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम जीरो नहीं कंज्यूम कर सकते थे, बट बच्चे मैंने इंडिफरेंस कर्व के केस में कहा था कि इंडिफरेंस कर्व में हम कॉम्बिनेशन जीरो नहीं बनाते, बट जब प्राइस लाइन बनाएंगे या बजट लाइन बनाएंगे, उसमें हम ऑल दी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। ठीक है, 4 2 0, सो इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 2, सॉरी, हाँ 2 3 4 एंड 5। ठीक है, राइट। सो आप देखो मैंने हर बार कितने रुपए खर्च किए? 100 रुपीज, क्योंकि इसकी प्राइस कितनी थी? 10 रुपीज, इसकी प्राइस कितनी थी? 20 रुपीज। सो दैट मीन्स कैसे कंजम्पशन किए? प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी
मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने हमने y के कंजम्पशन किए, इज इक्वल्स टू माय इनकम। ठीक है, सो दैट मीन्स मैंने इनकम में से x कमोडिटी y, अब जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट लेते हैं जहां मैं 10 यूनिट y के लिए थे, 10 into 10 plus 20 into 0 which is equals to 100 रुपीज। मीन्स हर टाइम मैंने 100 रुपीज ही स्पेंड किए ऑन माय इनकम। ठीक है, अगर मेरी इनकम सो द शेप ऑफ द बजट लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम, so the shape of budget line is this is AB is your budget line। अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो जाती है 100 से 200 तो मेरी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, दिस कैन बी इन ए पैरेलल मैनर, ये पैरेलल इंक्रीज हो सकती है A से B, A1 से A1, AB से A1 B1। अगर मेरी प्राइस इनकम कम हो जाती है तो ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस कैन बजट लाइन जो है वो पैरेलल शिफ्ट हो जाती है इनकम इंक्रीज या डिक्लाइन से। सो लेट मी टेक क्वेश्चंस। इंडिफरेंस का फरीन 1 मिनट मुझे तो दोबारा समझा देते। यस बच्चे, बजट लाइन एंड प्राइस लाइन आर द सेम। I hope I have already answered this. Budget line and the price line are the same, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, I hope budget line is clear। सेकेंड चीज मेरी क्या रिक्वायरमेंट थी, इंडिफरेंस मैप। सो इंडिफरेंस मैप क्या होता है कि वेरियस लेवल ऑफ दिस सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। कैन यू एक्सप्लेन बच्चे 120 कैसे हुआ? 20 multiplied by 0 0 नहीं होगा, 10 into 10 is equals to 100। So if I am saying 10 into 10 plus 20 into 0 which is equals to 100, I think मैं मैथमेटिक्स ना समझाऊं, 100 प्लस किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 नहीं आएगा। आई थिंक मैं ये बहुत पहले बोर्ड मार्क्स का रूल से आपको 5th 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में कराया जाता है कि किसी भी चीज को मल्टीप्लाइड बाय 0 करोगे तो उसकी वैल्यू जो है 0 ही होती है, नंबर नहीं होती। 20 multiplied by 0 is 0, not 20। I hope you understood। So indifference map is different combination of two commodities which give different level of satisfaction to the consumer। अब IC पे एक level of satisfaction, IC1 पे another level of satisfaction, IC2 पे another level of satisfaction। So the different level of satisfaction जो है on the different level of ICs। ठीक है, higher the indifference curve, higher the level of satisfaction, lower the indifference curve, lower will be the level of satisfaction। I hope it's clear now। I hope it's clear now। So what is indifference map? एक तरह से मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो एक ही डायग्राम में जब एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होते हैं उसको इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। ठीक है, ओके। सो फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मुझे दोनों चीजें चाहिए, इंडिफरेंस कर्व भी एंड बजट लाइन भी। ठीक है, अब आप मैं कहूंगी प्लीज साथ साथ आप भी ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, क्योंकि ये वाली तो फिर भी आप चलो कर लोगे, आगे वाली आपके लिए लिटिल डिफिकल्ट होंगे ड्रॉ करने।
जब हम सेपरेशन करेंगे, स्पेशली द नेक्स्ट क्लास में जो आएंगे। दिस इज द बजट लाइन। बजट लाइन क्या हुआ, एक कंज्यूमर अपनी इनकम में से कितने कॉम्बिनेशन, वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन खरीद सकता है। ठीक है। सेकेंड चीज मुझे क्या चाहिए, इंडिफरेंस मैप। सो दिस इज द फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व and this is the second indifference curve and this is the third indifference curve। ठीक है। जितने भी, अब ऑब्वियसली कंज्यूमर क्या चाहेगा, हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व पे पहुंचना। ठीक है। सो दैट मींस हायर पॉसिबल क्या है, IC2, बट इसके लिए मेरे पास इनकम नहीं है, आई डोंट हैव द इनकम ऑफ IC2। तो दैट मीन्स यहाँ पे कंज्यूमर कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये चीज पहले से ही डिलीट होगी। अब बचे क्या, IC एंड IC1। अब यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस नहीं क्लियर होगा बच्चे, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में भी बता दूं। फर्स्ट कंडीशन, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये तीनों पॉइंट पे है, ए पे भी है, बी पे भी है एंड सी पे भी है। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किस पे होती है, तीनों पॉइंट्स पे होती है, ए बी एंड सी पे। बट इक्विलिब्रियम पॉइंट तो एक ही होगा ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेकंड ऑर्डर कंडीशन। दैट मींस द sacrifice rate या marginal rate of substitution या you can say the basically the IC is convex to origin, या फिर हम कह सकते हैं कि दिस उसके जस्ट पॉइंट के बाद the slope of IC या MRS of IC is greater than the MRS of budget line। ठीक है। या फिर हम इसको एक और वे में लिखते हैं, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। उस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है। नाउ अगर मैं दूसरे वे में बात करूं, सिंपल वे में, IC1 gives me the higher level of satisfaction IC as per the definition। So definitely मैं किस पे जाना चाहूंगी, इक्विलिब्रियम पे, IC1 पे, क्योंकि वो मुझे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा एज कंपेयर टू दी IC। सेकेंड, ये तो सिंपल हो गया कि ऑब्वियसली पॉइंट ए बी से ज्यादा पॉइंट सी मुझे सेटिस्फैक्शन देगा, तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, सी। सेकेंड वे है इससे, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो शुड बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स नहीं है, डाउनवर्ड है, यहाँ पे भी कन्वेक्सिटी नहीं है, सो इस पॉइंट पे कन्वेक्सिटी है। ठीक है, पॉइंट सी पे। एक और वे में जैसे एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की स्लोप बजट लाइन से उसके बाद पॉइंट से ज्यादा होनी चाहिए। सो सी, यहाँ पे इंडिफरेंस का ऊपर है एज कंपेयर टू द बजट लाइन। ये ब्लैक लाइंस मैं सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपने ड्रॉ नहीं करनी है। ठीक है, आपने सिर्फ ये जो ग्रीन और ब्लू लाइंस है ना वही ड्रॉ करनी है, या ABC पॉइंट शो करने हैं। ये जो ब्लैक लाइन है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, सो द पॉइंट C इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और वे में भी एक्सप्लेन करना है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी बिकॉज टाइम नहीं है। यूनिट माइट बी सेकंड और थर्ड, नहीं थर्ड नहीं होगा क्योंकि थर्ड प्रोडक्शन हो सकता है, एंड दिस इज सेकंड यूनिट। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन मतलब जहां पे दोनों इक्वल हो, जैसे कि पॉइंट ABC पे, यहाँ पे भी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व सेम है, यहाँ पे भी
और यहाँ पे भी। तो जहां पे दोनों सेम होते हैं ना, उस चीज को कहते हैं बजट स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो बाकी मैं इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा समझाऊंगी, मतलब मैथमेटिकली नहीं, बस थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेनेशन में आएगा। सो आई होप आप आ जाएगा जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज अभी आई हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, नहीं तो मैं अभी बता देती। बजट लाइन की स्लोप क्या होती है नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगी। अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज। हाँ, अगर फिर भी आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में 3-4 मिनट पहले आप ज्वाइन करके क्वेश्चंस लिख देना, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे तक पहुंच जाते हैं, सो दैट कि मैं क्लास स्टार्ट होते ही आपके क्वेश्चंस की क्वेरी पहले आंसर करूं। ठीक है, मैंने वही बताया, क्योंकि सी पॉइंट इसलिए इक्विलिब्रियम में है, ए एंड बी इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे जो कन्वेक्सिटी नहीं है इंडिफरेंस कर्व की। देखो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व स्टिल डाउनवर्ड स्लोपिंग, और यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, कन्वेक्सिटी नहीं है, कन्वेक्सिटी सिर्फ सी पॉइंट पे है। ठीक है, इसीलिए C इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दैट टू इज ऑन दी हायर इंडिफरेंस कर्व। तो कंज्यूमर क्या चाहेगा, हायर से हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व पे पहुंचना चाहेगा, सो दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, सो एक चीज है, द स्लोप ऑफ बजट लाइन is the price ratio of two commodities, that means px by py, and that too equals to the marginal rate of substitution। marginal rate of substitution किसका स्लोप है, इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, सो दिस विल बी इक्विलिब्रियम। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या है कि ये उसके बाद जो है, उस पॉइंट के बाद थोड़ा मतलब आईसी जो है वो ऊपर हो एज कंपेयर टू द बजट लाइन। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ, एंड अगर नहीं क्लियर होगा तो आई प्लीज नेक्स्ट क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेना, और मतलब स्टार्टिंग से पहले ही 2-4 मिनट ज्वाइन कर लेना और क्वेश्चन लिख देना, सो दैट आई विल एबल टू आंसर योर क्वेरी। जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है मैं उसी क्वेरी को आंसर करके देन आई मूव फर्दर। एंड प्लीज डू रिमेंबर नेक्स्ट क्लास में पेन और पेपर साथ जरूर लेके बैठना। देखो, चाहे आपके एग्जाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आपको घर बैठ के देने हैं, कॉलेज आके देने हैं, डायग्राम दोनों में ही नीट एंड क्लीन और अच्छे से ड्रॉ करनी है। और उस केस के लिए आपको डायग्राम पहले अच्छे से समझ आनी चाहिए, और समझ आने के लिए आप पहले डायग्राम को खुद से ड्रॉ करोगे तभी आपको समझ आएगी। सो फॉर दैट प्लीज पेन एंड पेपर के साथ नेक्स्ट क्लास में रेडी रहना, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो 2-4 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और वैसे भी आपको 1-2 मिनट पहले ज्वाइन कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके गाइस, सो नो मोर क्वेश्चंस, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।